हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Three tier structure of Panchayati Raj. There is the most important for the all class. There are 11 CBSE and also BA class. And UP Bihar board is also the most important here. The three tiers of structure of Panchayati Raj. There is the first point is the three tiers here of Panchayat at a village level. That is the most important. There is the first point of three tiers. This is the basis of the grassroots level of Panchayati Raj. The Panchayat for the village are a group of village included. There is a Panchayati at a village level. There are three types. The Gram Sabha, the symbol of direct democracy, Gram Panchayat and Nyay Panchayat. There is a three part of Panchayat at a village level. There is a first point of three types of structure here, Panchayat at a village level. There is a first here, Panchayat at a village level is a Gram Sabha. The Gram Sabha here, recognized of the Gram Sabha is an institution of the direct democracy, is an important feature of 73 amendment. The Gram Sabha consists of all adult residents within a village or group of the villages, and thus it is the only institution of the direct democracy in the country. Generally, two meetings of Gram Sabha are held every year. In this meeting, their Gram Sabha as the general body of the people hear annual statement of account. The related there is the administrative report of Panchayat. It's also recommended new development project to be undertaken by Panchayat. It's the most important line. They note down your note copy, and it also help in the identify the poor people of the village, so that there may be given a economic assistance. And the next point here, a gram level, the Gram Panchayat. The second point here, the first point, their lower tier of the Panchayati Raj system in the country in the village level, Panchayat. It is known as the most of state is a Gram Panchayat. The member of Gram Panchayat are directly elected by the people. There is a note down the point here, directly elected by the people. The number of member of Gram Panchayat is a fixed on the basis of the village population. Note down that this point is the most important here. The basis of the village population is the most important. The fix of Gram Panchayat is the fix here of village population. And it is different from to the Panchayat. At the Panchayat, the election is held on the basis of the single member constituency. This point is also important here. As I already mentioned, 1/3 of the total number of seats are reserved for a woman and some of the scheduled caste. There is the most important point here. There is seat of reserved for the woman. There is the most important. 1/3 seat are reserved for the woman, and also scheduled caste and tribes include 1/3 of women of scheduled caste and tribes here. There is the most important line here. And chairperson of the Gram Panchayat are called by different names the different state as a Sarpanch, Pradhan, या President. There is the most important. There is a name of different name for the different state. Sarpanch, Pradhan, or President. There is a vice chairperson also is called here, but they are elected by the member of the Panchayat. There is a member of Panchayat selected by the chairpersons. The Gram Panchayat generally hold their meeting once of a month, and Panchayat at all level constitutional committee for transactions of their business. The next important here is the part of first, they are Nyay Panchayat. And these are judicially Panchayat and the remainder of assent village. Panchayat that settles local debts. They are set up to provide speedily and inexpensive justice. Dedication of the Nyay Panchayat varies from state to state. One such a Panchayat is a set up to 5 or more Gram Panchayat. There is a 10 of the between 3 to the 5 year as determined by the state is a law. The Nyay Panchayat generally deal with the petty civil and criminal case, and case impose fine into rupees 100 only. There are no lawyers to the pleaded to the case in the Nyay Panchayat, and party to be a debtor agree there is a open case. There is a most important point here. There are debtor agree there is a open case on people. The three tier here, the second
point here, panchayat samiti. There is a part of 3 tiers here. Second point is a panchayat samiti. Note down. Second point here, panchayat samiti. The second or middle tier of the panchayati raj is a panchayat samiti, which is a provide as a link between gram panchayat and jila parishad. This is the most important. Note down the line of your copy. The strength of the panchayat samitis also depend on the population in a samiti area. In a panchayat samiti, some members are directly elected. Sarpanch of gram panchayat are ex-offices of member of panchayat samitis. However, all the sarpanch and gram panchayat are not be member of panchayat samiti at the same time. The number varies from state to state and the rotated annually. It's mean to that only a chairperson of some gram panchayats in a samiti area and member of panchayat samiti at a time. In some panchayat, member of legislative assemblies and legislative council as well as a member of parliament who is a belong to a samiti area co-opted and it's a member. Chairperson of panchayat samiti are generally elected from among their directly elected to the member. The third point here, a 3 tier of panchayati raj. There are third point here and third tiers. Jila Parishad at the district level of the uppermost tier of the panchayati raj system. This institution has some directly elected to the member was the number different from a state to state as it is also based on population. The chairperson of panchayati samiti are ex-official member of Jila Parishad. The member of Parliament, Legislative Assembly and Council belonging to their district are also nominated member of Jila Parishad. The chairperson of Jila Parishad is called to the Adhyaksh or President is elected from among the directly elected member. The vice chairperson is also elected to the similarly. The Jila Parishad is a meeting are conducted once a month. There is the most important. There is a Jila Parishad meeting are the conducted once a month. A special meeting can be also be convened. The discuss of a special matter, subject and committees are also formed. Here the one point is coming to the is a time to time ex officio. What do you mean by ex officio here? A person who is held on the office not because she is elected to the post but is a virtual of their fact that she is held another office. दोस्तों यहाँ पर जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज के 3 सत्र। देखिए ये एग्जामिनर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा रहा है और ये 11वीं क्लास सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में बीए वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है जिनके सिलेबस में जो है 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज है। यानी कोई भी बोर्ड की क्लास के बच्चे हों अगर उनमें जो है 3 टायर ऑफ पंचायती राज है यानी पंचायती राज के 3 सत्र है तो ये चैप्टर काफ़ी उनके लिए जो टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यही बात बताया गया है ग्राम स्तर पर पंचायत। देखिए सबसे पहली बात तो यही आता है ग्राम स्तर पर पंचायत। ये पहला जो है त्रिस्तरीय के ऊपर पंचायती राज का पहला पॉइंट है कि ग्राम स्तर पर पंचायत राज का क्या होता है। देखिए ये पंचायती राज का आधार अथवा आधारभूत स्तर माना जाता है। किसी एक गांव अथवा गांव के समूह के लिए पंचायत में ग्राम सभा होना जरूरी होता है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतीक होता है। उसके पश्चात होता है ग्राम पंचायत होती है। तो ये सारे के सारे जो है काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है। पहले पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा दोस्तों आया है ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा यही बताती है 3 टायर्स के पहले पॉइंट के पहला पार्ट की रिगार्डिंग कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था ग्राम सभा के मान्यता देना और 73वें यानी 73वें संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यानी जब संशोधन हुआ तो जो है ग्राम सभा को जो है प्राथमिकता दी गई और इसके रिगार्डिंग संशोधन भी किया गया जिसको इसमें सम्मिलित किया गया 3 टायर्स के अंतर्गत। गांव के सभी व्यास निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी कोई भी जो व्यक्ति हो चुका हो वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। अंततः देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अकेली संस्था मानी जा सकती है। सामान्यतः ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें सभाएं होती है और इन सभाओं में ग्राम सभा लोगों की आम सभा होने के नाते पंचायतों की वार्षिक आय व्यय का विवरण रखता है। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए
कि यह सभा होने के नाते पंचायतों की वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा रखता है, लेख परीक्षण रखता है और पंचायत की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी सुनाती है। यह पंचायतों द्वारा लिए जाने वाले सभी विकासात्मक परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान करता है। यानी जो भी विकासात्मक परियोजनाएं बनाई जाती हैं, प्लान बनाई जाती है, उसको जो है स्वीकृति प्रदान करना ग्राम सभा का ही कार्य होता है। यह गांव के गरीब लोगों की पहचान करने में भी काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। भाई देखिए, ये ग्राम सभा है तो ग्राम सभा ही ग्राम के लोगों के बारे में जान सकता है और उसका जो है गरीबों को पहचान करने में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा सके। देखिए, जब तक आप गरीब लोगों की पहचान नहीं कीजिएगा तब तक उनकी आर्थिक सहायता करना संभव ही नहीं है। इसलिए ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। 3 टायर के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है ग्राम पंचायत। देखिए, पहले पॉइंट के लेवल के रिगार्डिंग जो है अगर हम देखें दूसरी पॉइंट यहाँ पर ग्राम पंचायत की, तो देश में पंचायती राज का निचला सतर ग्राम स्तरीय पंचायत है। यानी देखा जाए तो देश में पंचायती राज का निचला सतर हमेशा ही ग्राम स्तरीय पंचायत होती है और अधिकांश राज्यों में इसे ग्राम पंचायत के रूप में जाना भी जाता है। यानी इसको हम ग्राम पंचायत के रूप में जानते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या को गांव की जनसंख्या के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको जो है नोट डाउन करने की आवश्यकता है और यही एग्जाम में आपको लिखना भी है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। ये पॉइंट कई जगहों पे आप लिख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे तेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट बात को नोट डाउन कर लेते हैं। अंत ये प्रत्येक गाँव के लिए भिन्न भिन्न होती है। एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। यानी वही होता है सिस्टम जो आपको पता ही है, एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाने जाने के प्रावधान किया जाता है। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि कुल सीटों की संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित। देखिए, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई जगह आप पॉइंट डाल सकते हो क्योंकि ये सभी जगह उपलब्ध है कि महिलाओं को आरक्षण दी जाती है। अब देखिए, ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी सीटों में जो महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो होती है आरक्षित होती है और कुछ अनुसूचित जाति भी इसमें सम्मिलित होती है, जिनमें जनजातियों के लिए 1/3 अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए जो सीटें होती है वो आरक्षित कर दी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। अलग अलग राज्य में ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये जनरली सी बात है, भारत है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हर क्षेत्र में सभी को कुछ न कुछ अलग नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए अध्यक्ष को यहाँ पर जो है सरपंच भी कह सकते हो, प्रधान भी कह सकते हो या मुखिया भी कह सकते हो। ये कोई भी नाम से आप पुकार सकते हो। ये जिस क्षेत्र में आप रहते हो उसी नाम से आप जानोगे उसको। और साधारण तौर पर देखा जाए तो उसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है। यानी सब जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होता है, सब प्रेसिडेंट, यानी एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। दोनों ही पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, यानी पंचायत के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं जो जीत के जाते हैं। ग्राम पंचायत साधारणतः महीने में एक बार अपनी बैठक करती है, जो कि जरूरी भी है। महीने में एक बार बैठक होती है और पंचायत सभी सदस्यों पर अपना काम चलाने के लिए समिति के से गठित होती है, जुड़ी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो हमारा जो है 3 टायर का सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, यानी त्रिस्तरीय का जो है दूसरा पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत जो है पंचायती समिति आती है। यानी पंचायत समिति जो कि 3 टायर के दूसरा पॉइंट के रूप में है। पंचायती राज का दूसरा अथवा मध्य स्तरीय पंचायत समिति भी कहते हैं, यानी मध्य में रहने वाला पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच ही कड़ी कार्य करता है। देखिए, ग्राम पंचायत और जिला परिषद यानी हमारा 3 टायर्स होती है, जिसमें पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ये 3 टायर है और 3 टायर के मध्य जो होती है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति एक तरह से देखा जाए तो जो है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के जोड़ के रखती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बात। पंचायत समिति की सदस्य संख्या भी सीमित क्षेत्रों की जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। देखिए, ये भी बात इंपॉर्टेंट आ गया ना कि ये जो नोट करने वाली बात है कि पंचायत समिति के सदस्य की संख्या भी जो है उस क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करता है। उस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या होगी उतने ही सदस्य जो है होंगे पंचायत समिति में निहित होंगे। पंचायत समिति में कुछ सदस्य सीधे ही निर्वाचित हो जाते हैं। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पंचायत समिति में अगर कुछ सदस्य जो होते हैं डायरेक्ट जो होते हैं निर्वाचित हो जाते हैं, यानी डायरेक्ट चुन लिए जाते हैं।
ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पंचायत समिति के पदोन्नत सदस्य होते हैं, परंतु सभी पंचायतों के अध्यक्ष एक ही समय पर पंचायत समिति के सदस्य नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है कि एक समय पर कुछ ही ग्राम पंचायत के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। कुछ पंचायतों में क्षेत्र से संबंधित विधायकों, विधान परिषद के सदस्य और सांसदों को भी जो है सम्मिलित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रायः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में ही चुन लिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं हमारा जो है तीसरा पॉइंट, जिला परिषद। आखिर जिला परिषद में है क्या, जो कि बहुत काफ़ी नीचे आती है। देखिए जिला परिषद आखिर है क्या। जिला परिषद पंचायती राज का सबसे उच्च सदर होता है। देखिए अगर हम इसको डायग्राम फ्लो करें तो सबसे ऊपर वो रहेगा, उसके बाद ये रहेगा और जिला परिषद नीचे आएगा, लेकिन ये नीचे नहीं है, ये सबसे ऊंचा है और सबसे जो है विश्वसनीय भी है, इसलिए इसको नीचे जरूर रखा गया। अगर हम डायग्राम फ्लो देखें तो इसको नीचे जरूर रखा गया है, लेकिन कहते हैं ना जो नीचे होता है वो पावरफुल होता है, उसका मध्य वाला होता है उसके पावरफुल होता है, और उसके बाद जो लास्ट में ऊपर होता है वो कम पावरफुल होता है। तो जिला परिषद काफ़ी उच्च स्तर के होते हैं और इसमें बहुत काफ़ी पावर भी होती है। इस संस्था के अलग कुछ सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जिनकी संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती है। यानी तो जनरल सी बात है कि एक राज्य में कुछ और होगी, दूसरे राज्य में कुछ और होगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि जनसंख्या जितनी होगी उतने ही जिला परिषद के सदस्य भी होंगे, जिसको मैंने पहले ही कहा था कि हर जगह ये पॉइंट आपका चल सकता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के जो है पदेन सदस्य होते हैं और जिला से संबंध रखने वाले संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को भी जिला परिषद का सदस्य नामांकित किया जा सकता है। जिला परिषद के चेयरपर्सन, जिसे हम अध्यक्ष कहा जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। वाइस जो है चेयरमैन या उपाध्यक्ष को भी इसी प्रकार चुना जाने का प्रावधान किया गया है। जिला परिषद की मीटिंग मास में एक बार की जाती है और विशेष मामलों में चर्चा के लिए विशेष बैठकों की जा सकती है। विशेष समिति भी इसमें अपनाई जाती है। इसमें एक शब्द जो है बार बार आ रहा है, वो है पदेन सदस्य। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसलिए पद नहीं होता है कि उसे निर्वाचित किया गया है, अतुल इसके पास दूसरा कोई पद होने के कारण वह पद का हकदार होता है। तो ये पदेन सदस्य के रूप में यहाँ पर लिया गया है, जिसको आपको समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो है हम पंचायती यानी 3 टायर्स के जो है विशेषता के ऊपर प्रकाश डालेंगे। The most important topic of 3 tier, there are 3 tiers here, a function. What is the function of the 3 tier here? There is a function of the Panchayati Raj institution. There is the most important topic here. All the Panchayati Raj institution perform such a function as the specific state as a law relating to Panchayati Raj. Generally speaking of the function are under the first point here, functions of the Gram Panchayat. What is the function of the here Gram Panchayat? The some state initiated between to the obligator or compulsory and optionally function of Gram Panchayat. Well, other state do not make these distinctions. The civil function relative to the sanitation, cleaning of public road, drain and ponds, public toilet and toiletries, primary health care, vaccination, supply of drink water and construction of public well, street lighting, social health and primary and adult education, etc. There is a work function of the Gram Panchayat. Or obligated function of the village Panchayat, the optionally function depend on the resource of the Panchayat, and they may not be performed such a functions as the 3 plantations on the roadside, setting up the breedings, center of the cattle, organized child and the maintenance of welfare, promotion of agriculture and etc. There is a function of Gram Panchayat. After the 73 amendment, the scope of function of Gram Panchayat was evident. Such an important function like preparation of annual development plan of Panchayat area, annual budget, relief in the natural calamities and the removal of the encroachment of public land, implementation here, and the monitoring of poverty alleviation programs are now expected to be performed by the Panchayats. Selection of the beneficiaries through the Gram Sabha public distribution system, non-conventional energy source, and improve a chula biogas plant have also been given a Gram Panchayat in some state. The next function here,
The function of the Panchayat Samiti. There is a three tiers here. Is a middle. There is a function of Panchayat Samiti. Panchayat Samiti are at the hub of the developmental activity. There is a hub of developmental activity, and their head of the block of department officer is a BDOS. Some function are the interested to be them, like agriculture, land improvement, and watershed development, and social, and the form is a forestry, technical, and vocational education. The second type of function related to their implement of some specific plan. Scheme are programmed to be with which fund are earmarked. It is a mean to that a panchayat samiti has to spend money only on the specific project. This choice of the location and beneficiaries is however available to the panchayat samiti. The third tier here, the function of Jila Parishad. There is a third tier is a function. Jila Parishad is linked to Panchayati Samiti with the district. It is a coordinate there is activity and the supervise there is a functioning. It is a prepare district plan and integrated to the Samiti plan into a district's plan for a submission to the state government. Jila Parishad look after development work in the entire district. It is an undertake aimed to improve the agriculture production, exported and ground state water resource, extend the rural is electrification and distribution of the initial of implement generating to activity, construction, road and other public work. It is also performed to welfare function like a belief due to natural is a calamities and the scarcity, establishment of the orphanages and the poor home, night, shelter and welfare of women and children, etc. In addition, Jila Parishad perform a function instituted to them under to central and state government sponsored program. For example, Johar Rozgar Yojana. Johar Rozgar Yojana is a big central sponsored scheme for which money is directly given to be district to undertake employment generating activity. यहाँ पर जो हमारा बताया गया है कि थ्री टायर्स के जो है फंक्शन, देखिए जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है उसका क्या कार्य प्रणाली है ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि कार्य प्रणाली आपको पता है कि वही होता है जो शहरों में म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन का होता है। तो आप यहाँ पर समझदार हो तो यही बात जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पंचायती राज्य संस्थाओं की कार्य जो होती है, पंचायती राज संस्थाओं के वे सब कार्य करते हैं जिन्हें राज्य कानून में पंचायती राज्य के लिए निर्धारित किया गया है। सामान्य रूप से इसके कार्य जो है कुछ इस प्रकार है। अगर हम पहले टायर्स की बात करें यानी पहले सत्र की बात करें तो ग्राम पंचायत के कार्य होते क्या हैं। देखिए ग्राम पंचायत कार्य क्या होगा, कुछ राज्य ग्राम पंचायत के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य में भेद करते हैं जबकि अन्य राज्य ऐसा नहीं करते हैं। सफाई, सार्वजनिक सड़कों की सफाई, सार्वजनिक कुओं का निर्माण, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि से संबंधित नागरिक कार्य ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य, ऐच्छिक कार्य पंचायत के संसाधनों का निर्भर करते हैं। वह ऐसे कार्य तथा अन्य नहीं कर सकते हैं जैसे कि सड़कों दोनों को वृक्ष लगवाना, पशु प्रजनन केंद्र स्थापित करना, बाल और प्रसूति कल्याण केंद्र स्थापित करना, कृषि को बढ़ावा देना इत्यादि। देखिए ये सारे कार्य जो है जनरली आपको पता ही है कि हमारे अगर शहरों में रहते हैं तो म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन द्वारा कई कार्य जो है संपन्न की जाती है। तो ये सारे कार्य जो है ग्राम पंचायत कार्य के अंतर्गत भी आता है, तो ये आपको लिए जो होगा याद करना बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि बात करें 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायत कार्य का क्षेत्र विस्तृत हुआ है और पंचायत क्षेत्र के वार्षिक विकास योजना बनाना, ठीक है, ये भी कार्य उसमें सम्मिलित है। वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करना, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाना, गरीबी का हटाने के कार्यक्रम को लागू करना। देखिए गरीबी हटाने का सब कार्यक्रम जो है इसमें भी सम्मिलित है। कहते हैं हमारे संविधान में हर चीज़ का प्रावधान है लेकिन वो सुचारू रूप से चल नहीं पाती है क्योंकि बहुत सी चीज़ जो जगह लोग जो होते हैं करप्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो सारी बातें लिखी गई है जो हमारे देश के लिए विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम की बात कर रखा हो या देख रेख करने जैसे कार्यक्रम पंचायत द्वारा किए जाने की आशा की जाती है। ग्राम सभा के मध्य से लाभान्वित होने वाले चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
या पारंपरिक चूल्हे बायोगैस प्लांट्स भी कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत में सौंप दिए गए हैं, जहां पर ये सारे जो है गरीब लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उसके पश्चात दूसरे टायर के अंतर्गत आता है दूसरा हमारा जो था पंचायत समिति के कार्य। देखिए पंचायत समिति के कार्य क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पंचायत समिति विकास कार्य का केंद्र माना जाता है, यानी पंचायत समिति में सारे विकास के केंद्र होते हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ब्लॉक विकास अधिकारी उनके शीर्ष पद पर होते हैं। कृषि भूमि सुधार हो या पानी का संग्रह का विकास हो, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि जैसे कार्य इनको ही सौंप दिए गए हैं। दूसरे प्रकार के कार्य का संबंध कुछ विशेष योजनाओं को लागू करने से भी होता है, जिसके लिए धनराशि निश्चित होती है। इसका अर्थ यह है कि पंचायत समिति को निश्चित परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना होता है। स्थान अथवा जो लाभयोगी को चुनने का अधिकार भी पंचायत समिति के पास ही उपलब्ध होता है। अब हमारा जो पॉइंट होगा तीसरा पॉइंट, जो कि अंतिम होगा। आपको पता है कि तीसरा पॉइंट 3 टायर्स के अंतर्गत आएगा। तीसरा पॉइंट जिसमें हम जिला परिषद के कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या है हमारा जो तीसरा पॉइंट आया है, जिला परिषद कार्य। देखिए जिला परिषद जिले की पंचायत समिति को जोड़ती है और यह उनकी जो है गतिविधियों के साथ तालमेल भी करती है, यानी गतिविधियों में तालमेल करना ही जिला परिषद का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है। उनकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण भी करती है कि कैसे कार्य कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो सभी चीज़ों का निरीक्षण करना ही जिला परिषद कार्य माना जाता है। यह जिला की योजनाएं भी बनाती है और राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए समिति और योजनाओं का जिला योजनाओं में समाकलन भी करती है। जिला परिषद पूरे जिले के विकास कार्य को देखभाल भी करती है और यह कृषि उत्पादन बढ़ाने, भू जल संसाधनों के दोहन, ग्रामीण विद्युतीकरण के बढ़ाने तथा वितरण और रोजगार प्रदान करने वाले गतिविधियों को भी शुरू करने और सड़क बनाने अन्य सार्वजनिक कार्य को अपने हाथों में भी ले लेती है। यह प्राकृतिक आपदाएं एवं अभाव के दौरान राहत कार्य जैसे कल्याणकारी कार्य, अनाथालय और जो है निर्धन गृह, रैन बसेरे, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण इत्यादि कार्य भी जो है जिला परिषद के कार्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही जिला परिषद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को अंतर्गत किए गए कार्य को भी करती है। उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार योजना केंद्र द्वारा अप्रायोजित एक बड़ी योजना है, जिसके लिए पैसा सीधे दिया जाता है और इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध भी कराना होता है। Our next topic is the most important here, source of income of panchayat. What is the source of income of panchayat here? The panchayat can be discharged their function essentially only if they have a sufficient financial resource. The financial resource is the most important for the all person, the development of the resource. For resource of panchayat depend mainly on the grant from state government. There is a mainly on the grant from state government. They also have a taxation power and have some income from earned by the vested assessed. They may be get a share in the taxes, duties, tolls and fees that are there is collected by their state government. Let us now see that a financial resource panchayati have to be perform their function. The next point here is the most important. The gram panchayat is the most state of power of the aligning tax in the vested the gram panchayat. House tax, tax on the cattle is employable properties and the commercially crop, drainage tax, sanitation fees, tax on produce in the village, fee for supply of water to the households, and the lighting tax and some of the taxes and fees levied by the panchayat. Panchayat can be levied of entertainment tax on the temporarily sanitation is a theaters. Taxes on the animal and non-medically is a prohibited vehicles paid for the hire. The Gram Panchayat also receive fund or the income from a property owned by them. A common is a grounds, jungles, cattle grounds, etc. The sale or produce of dung, other refuse and the careless and dead body of animal is also returned by the Gram Panchayat. They also receive their share in the land revenue from the state. The next year source of Panchayati Samiti. Panchayat Samiti can improve a tax on facility provided by them as a water, drinking or irrigation purpose and the lighting arrangement toll of the bridge maintaining by them. The property of the Panchayat Samiti include a public building, public road construction are maintained out of their fund
and all land or other property transferred to them by their government. The panchayat receive income from the property vested in them, and they also receive a grant form of state government. Fund are transferred by the Jila Panchayat or state government. The next and the last tier is the source of Jila Parishad. The Jila Parishad are also authorized to the impose of taxes, and they may be imposed of tax on the person carrying on the business in the rural area for a 6 month. Tax on the brokers is the commissions agent in the market established by them, and also tax on the sale of good in these markets. Tax on the land review can also imposed by the Jila Parishad when development schemes are interested of them. Necessary funds are also provided, and they also receive grant from the state is a donation from the charitable institution, and may also rise to the loan. There is a most important for a source of income of पंचायत. यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायत की आय का स्रोत। देखिए पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है, आपको अगर हमने अभी पढ़ा भी है कि 3 टायर्स, तो देखिए 3 टायर्स के अंतर्गत ही जो होगा आय का स्रोत आएगा ना, ये तो जनरल सी बात है। तो कहते हैं पंचायत अपना काम तभी प्रभावशाली ढंग से कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। देखिए जब तक वित्तीय संसाधन नहीं होगा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति के लिए पैसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि तभी तो वो विकास के कार्य के लिए करने के लिए आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए सरकार अगर पैसे नहीं दे रही है तो वो कहाँ से कर लेंगे। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये होती है कि सरकार की तरफ से पैसे तो दी जाती है प्रॉपर, लेकिन वो कहते हैं जिला स्तर पर पहुँचते जहाँ पर लोगों की भलाई के लिए चाहिए लगाना होता है पैसा, वहाँ पर आधे से भी कम रह जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में करप्शन की एक बहुत बड़ी लंबी चैन है जिसको हर एक व्यक्ति जो है नकार नहीं सकता। इवन कि आप भी नकार नहीं सकते कि हर जगह जो है करप्शन भरा पड़ा है, तभी तो हमारे गाँव का इतना विकास नहीं हो पा रहा है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है और उनके जो है आय के स्रोत के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उनका आय जो होती है उन्हें हमारे से ही लेते हैं, यानी हमसे ही उन चीज़ों का जो है पैसे वसूलते हैं। कई क्षेत्र में आपने देखा भी होगा कि फ्री करने का प्रावधान किया गया है, सरकार की तरफ से फ्री बहुत कुछ दी जा रही है, तो ये पैसा कहीं और से वसूला नहीं जाएगा, आपसे ही वसूला जाएगा और आपका ही जेब ढीला किया जाएगा। तो वो कई रूप के टैक्स के रूप में हो सकते हैं जो कि आप सीधा आपको ज्ञान इस बात की प्राप्त है। कहते हैं अगर देखा जाए हमारा पॉइंट के ऊपर तो कहते हैं पंचायत ही अपना काम तभी प्रभावशाली ढंग से कर सकती है जब उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो। संसाधन के लिए पंचायत मुख्य राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितने पैसे उसको प्रोवाइड्स करते हैं। मैंने कहा भी था कि जैसे जैसे इस पैसा पहुँचता है राज्य सरकार देती है वैसे वैसे वो पैसे जो होते हैं धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उनके पास का कर लगाने की शक्ति भी होती है और अपनी अथवा निहित संपत्ति से भी कुछ आय प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए एकत्र किए गए टैक्स शुल्क और प्रवेश कर में उन्हें जो है हिस्सा मिल सकता है। आइए हम देखें कि पंचायत के पास अपने कार्य करने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा 3 टायर्स के अंतर्गत जो पंचायत ग्राम पंचायत के विषय में हमने चर्चा किया था, उनके पास जो है आय के स्रोत के रूप में कैसे प्रावधान होती है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया पंचायत जो है ग्राम पंचायत में कैसे जो रहता है आय का सोर्स बनता है। देखिए अधिकांश राज्यों में टैक्स लगाने की शक्ति ग्राम पंचायत के पास ही होता है। गृह कर हो सकता है, पशु एवं अचल संपत्ति पर कर हो सकता है, व्यावसायिक फसलें हो सकती है, पानी निकास पर टैक्स हो सकती है, गांव में बेचे गए उत्पाद पर भी टैक्स हो सकती है, घरों में दिए गए पानी पर भी टैक्स है, प्रकाश उपलब्ध कराने पर भी टैक्स है। पंचायत द्वारा लगाए गए कुछ शुल्क पंचायत द्वारा लगाए गए कर होती है। पंचायतें अस्थायी रूप से लगे थिएटर पर भी मनोरंजन पर भी कर लगा सकती है। पशुओं तथा अन्य किराए के लिए चलाए जाने वाले गैर यांत्रिक वाहनों पर भी टैक्स लगाने की प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों को उनकी संपत्ति जैसे मैदान, चरागाह, जंगल इत्यादि से भी आय के रूप में कोष प्राप्त होते हैं। गोबर, कूड़ा, जानवरों के मृत शरीर को बेचने से भी ग्राम पंचायत को आय का जो है प्रावधान हो जाती है। वो राज्य से भू राजस्व से भी अपना हिस्सा प्राप्त कर लेती है। तो ग्राम पंचायत के जो है अनुसार इन सारी चीज़ों से जो होता है उनको इनकम मिलती है, यानी आय प्राप्त होती है। उसके पश्चात है पंचायत समिति। देखिए पंचायत समिति से भी उनको पैसे जो है प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। पंचायत समिति अपने द्वारा प्रदान किए गए सुविधाओं पर
टैक्स लगा सकती है। जैसे पेय जल के ऊपर टैक्स लगा सकती है, अथवा सिंचाई के लिए दिए गए पानी पर भी टैक्स लगा सकती है। प्रकाश प्रबंधन किया है उसके ऊपर भी टैक्स होती है। आपके अगर आसपास अगर बल्ब जल रहे हैं तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि सरकार ने आपको जो है बल्ब लगा के दिया या बल्ब जो है सरकार पैसा भरेगी। नहीं दोस्तों, ये पैसा आपको ही भरना है और आपके ही किसी न किसी रूप में आपको ही प्राप्त होगी। अपने प्रबंधन में रखे गए फूले इत्यादि पर से भी पैसे वो इकट्ठा कर सकती है। पंचायत समिति की संपत्ति में सार्वजनिक भवन, अपने कोष से निर्मित रख रखाव वाली सार्वजनिक सड़कें और सारी भूमि अथवा सरकार द्वारा स्थानांतरित अन्य संपत्ति सम्मिलित होती है। पंचायतें अपनी संपत्ति के आय प्राप्त करती है और राज्य सरकार का अनुदान भी प्राप्त करती है। देखिए, ये अपना संपत्ति से भी आय प्राप्त करती है और सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान से भी प्राप्त करती है। जिला पंचायत और राज्य सरकार भी मध्यवर्ती स्तरों द्वारा लागू होने वाले योजनाओं के लिए पैसा स्थानांतरित करती है। यानी आपने देखा होगा कि अगर आपके पास खेत होगा तो उसको साल में एक बार जो है कराना पड़ता है एंट्री, तो उसमें आपके पैसे लगते हैं, तो वो सारे पैसे जो होते हैं टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है। कहते हैं टोल टैक्स उनसे भी लिया जाता है जो किसी सुविधा का प्रयोग करते हैं, इसलिए किसी पुल पर से गुजरने वाले से एक नाम मात्र की राशि पुल के टोल टैक्स के रूप में ली जा सकती है। तो ये भी प्रावधान किया गया, आपने देखे ही होंगे कई जगहों पर जो है टोल टैक्स बने होते हैं जहाँ पर आपसे पैसे उछले जाते हैं। उसके पश्चात अंतिम सोर्स जो होता है जिला परिषद के रूप में होता है। जिला परिषद भी टैक्स लगाने का अधिकार रखती है। वह 6 माह से ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करने वाले पर दलालों पर उसके द्वारा स्थापित मार्केटिंग पे आघात करने वाले पर मार्केट में सामान की बिक्री पर टैक्स लगा सकती है। जिला परिषद भू राजस्व में भी टैक्स लगाने की प्रावधान किया गया है। जब कोई विकास योजना उससे सौंपी जाती है तो आवश्यक जो है कोष भी प्रदान किया जाता है। ये राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकती है अथवा धर्मस्थल संस्थाओं से दान प्राप्त कर सकती है और ऋण भी ले सकती है। The next topic is here most important, evolution of the Panchayati Raj. What is the evolution of the Panchayati Raj here? The concept of the grassroots is a democracy at the both rural and urban level has not flourished in their country. Some of the major reasons behind his failure are politicians of administrations, entry of criminals element in the elected to the bodies, and the rampant corruptions and caste and group for division priorities to be self-interest over public welfare and electoral is a malpractice. The 73 Articles Amendment stick to the radically uttered to the power relation in the village and reserving seat for a scheduled caste, tribes and backward classes and women. However, in the absence of the proper education, trainings and economic independence, and this group are unable to assess themselves. Illiteracy, poverty and unemployment are the major handicaps. Urgent step need for the taken to efficiently deal with their problem in order to the facility of participators to development. And that there is a provision from to reservation of the seat from a woman has been manipulated by their male counterpart. So mostly their husband, it is intended to the empower them to the some extent. They are the increasingly incomings aware to their right of responsibility and their asserting to themselves in the container case. This is a definitely to very positive development. The last constitutionally amendment has accorded to the Lord Dance of the financial resource, the local self-governing institution. However, they still remain starved to fund. Taxation power has been given to them, but they are unable to be collect enough taxes. So, due to a scarcity of resource, a panchayati are not able to fulfill their role as a self-governing institution or carry out the economics development in a countryside. The panchayat are subject to the various control by the state governments. The state government are authorities to be cancel their resolution and even dissolve them. However, the 73 constitutional amendment has made to the compulsory for the state to hold election of Panchayati Raj bodies within the 6 months of their dissolution. It is necessary that the people participate activity in the democratically elected a panchayat. This can be ensured through the Gram Sabha. Through the Gram Sabha, as a people can question and
is a demanded explanation from a panchayat. Gram Sabha can be hemorrhage its need to and the priorities of the peoples and also plan direction of the village development. And the Gram Sabha can successfully play to the role of scoring of democracy at the grassroots if they are involved with the sufficient authority. The overall social, economic, and the cultural development of the rural area depend on the strong panchayat. The panchayat as the foundation of the democracy at the root is a grassroots can be strengthens only the responding faith of them and involving there is a with the aquatic administrative and financial power and encouraging to the willingness and the active participation of the people. कहते हैं पंचायती राज्य का मूल्यांकन। देखिए पंचायती राज्य का मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अगर हमने इसके सारे पार्टों को समझने की कोशिश किया है, चाहे उसके फंक्शन हो चाहे इसके इनकम रिसोर्स हो, तो इसका मूल्यांकन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों सतह पर जो है मूल सतह पर जो लोकतंत्र की अवधारणा फल फूल नहीं पाई है। देखिए कल फल फूल क्यों नहीं पाई है, कुछ ना कुछ तो कारण इसका जरूर बनेगा ना। इसलिए असफलता के पीछे कुछ मुख्य कारण जो है प्रशासन का राजनीतिकरण, निर्वाचित संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश, व्यापक भ्रष्टाचार, जाति और वर्गीकरण विभाजन, जन कल्याण के ऊपर स्वार्थ को प्राथमिकता और चुनावी अनाचार है। देखिए कहते हैं कोई भी देश तभी फल फूल नहीं पाता है क्योंकि आज देखा जाए तो राजनीति में हर जगह कहते हैं गलत तत्वों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। कोई अच्छा व्यक्ति करना चाहता है तो उसको करने नहीं दिया जाता है और जो कहते हैं जो अच्छा कर रहा है वो कर नहीं पा रहा है। तो ये प्रावधान बहुत ही जो है विडंबनापूर्ण है और इसको शायद कहते हैं ना इस संसार में तो मिटाना मुश्किल ही पड़ गया है। नहीं अगर देखिए अगर ये राजनीतिक में इन चीज़ों का अगर प्रावधान रहेगा तो राजनीति कभी भी आगे फलफुलित नहीं हो पाएगी और इवन कि लोगों का जीवन भी जो है तहस नहस हो जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप लोग समझदार होगे, आप लोग समझ जाओगे कि कौन आपके लिए सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, तभी जाके हमारे देश में कुछ बदलाव होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि करप्शन में यहाँ पर ख़त्म हो ही जाएगी। कहते हैं करप्शन तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी। करप्शन तब पैदा होती है जब इंसान की सोच ऐसे रहती है, लालच रहती है। तो लालच रहेगा तो करप्शन सदैव ही अपने जो है पैर बैठा के रखेगा। चाहे कोई सरकार ये क्यों ना कहते कि आप फ़ोन रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो, भाई इससे जो है शातिर अपराधी और सतर्क हो जाते हैं और उनका जो है करप्शन करने का तरीका भी बदल लेते हैं वो लोग। तो ये करने से आप करप्शन दूर नहीं कर सकते हो। करप्शन दूर करना है तो आप अपने मंत्रियों को समझाइए। करप्शन कोई आम गरीब बंदा नहीं कर रहा होता है, करप्शन बड़े बड़े लोग कर रहे होते हैं जो अच्छे खासे पोस्ट पे होते हैं। अब सोचिएगा कैसे, मान लीजिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है और सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सरकारी दफ्तर में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र होता है ना, वो कहाँ बनता है? सरकारी दफ्तर में ही बनता है और कहीं जगह पर बनाई नहीं जा सकती है और इसको कोई स्कूल वाले या कोई भी संस्था आपको मान्यता भी नहीं देगा। तो मान लीजिए आप कहाँ जा रहे हो, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो किसी संस्था में और सरकारी संस्था है। उस बंदे ने क्या किया, 500 की पत्ती मांगा आपसे, लेकिन आप बहुत ईमानदार थे, आपने कहा कि नहीं देना, मैंने जो मर्जी कर लो। आप हर जगह गए कि भाई मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, कैसे बनेगा? सब बंदों ने वही 500 की पत्ती का आपको मुंह फाड़ा। अब क्या होगा इस प्रोविजन में? इसमें अब यही होगा ना कि एक लिस्ट आपको उसको 500 रुपया देना ही पड़ेगा और वो व्यक्ति कौन था? सरकारी व्यक्ति था। तो आप समझिए ना, यही बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कहते हैं आम गरीबों में करप्शन नहीं है। आम गरीब तो परेशान हो रखी है करप्शन के चक्कर में। कौन व्यक्ति जो है 500 रुपया फालतू में देना पसंद करेगा जहाँ पर 100 का काम होगा? कोई नहीं देना पसंद करेगा यहाँ पर। तो इसमें करप्शन सरकार ये कहती है ना कि जहाँ भी मांगा, भाई अपने डिपार्टमेंट को समझाओ ना, अपने डिपार्टमेंट को सही बनाओ। करप्शन कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? जो बड़े बड़े अफसर हो रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, वो करप्शन में पकड़े जा रहे हैं, आम गरीब नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो करप्शन यहाँ पर सबसे अधिक राजनीतिक में है। और कहते हैं लोग कि आप करप्शन की बनाई, यार भाई हम कितने वीडियो बनाते रहे और वीडियो भी बना लेंगे, क्या वो बंदा मुझे छोड़ देगा? संभव ही नहीं है। वो कोई ना कोई रूप से हमारा जो है सत्यानाश ही कर देगा। तो सरकार को यहाँ इस बात पे देखना पड़ेगा कि आम जनता करप्ट नहीं कर रही है। बड़े बड़े अफसर जो हैं, बड़े बड़े नेता लोग सब हैं जो करप्ट में लिप्त हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता जो है करप्ट ही हैं, बहुत से ईमानदार भी हैं, लेकिन जो ईमानदार है उनको ईमानदारी से चलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बातें जो हमारा पंचायती में जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं उसमें जो है सबसे बड़ा विडंबना यही है
कि हमारा लोकतंत्र की अवधारणा फल फूल नहीं पाई है, इसी कारण से कि इसका कारण जो है राजनीतिकरण का है, निर्वाचित संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश हो गई है, व्याप्त जो है भ्रष्टाचार है और जाति और वर्गीकरण विभाजन है। आज जाति पर भी जो है पॉलिटिकल अच्छा खासा हो जाती है। ठीक है, जन कल्याण के ऊपर स्वार्थ और प्राथमिकता और चुनावी अनाचार भी है। कहते हैं 73 संशोधन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीट आरक्षण करके गांवों के ढांचों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है, परंतु उसके उचित शिक्षा की कमी, प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी के कारण ये समूह अपनी शक्ति प्रकट करने में असमर्थ हो जाती है। कहते हैं निरक्षरता, गरीबी और बेरोजगारी मुख्य सबसे बड़ी बाधा है। अब यही बात क्वेश्चन अब आ जाता है, निरक्षरता क्यों है, गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है? भाई महंगाई है, सबसे बड़ा क्या है, महंगाई है। महंगाई गरीब लोगों को गरीब कर दिया है। महंगाई के कारण बच्चों को आज पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजा जाता है क्योंकि निरक्षर हो रहे हैं। और बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आज जो है पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं। आज पढ़ाई लिखाई बहुत जो है कहते हैं ना लो तरीका का हो गया, जहाँ पर आज 10वीं क्लास के बच्चे को भी सही रूप से कुछ भी लिखने नहीं आता है, तो कैसे हमारा शिक्षा भी काफ़ी विकसित हो पाएगा? तो ये सारे कारण जो है हमारे कहते हैं देश के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है। सरकार तो कहते हैं ना एक क्षेत्र में करती है, अपना पिट्ठी जो है थपथपा लेती है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती है कि ये काम तो आपका ही था, इसमें आपने कौन सी बड़ी काम कर दिया है। थोड़ा शिक्षा पर ध्यान दे लिया तो आपने बहुत बड़ा तरक्की कर गए हो। ऐसा नहीं होता है, आपने कुछ क्षेत्र में किया है, आगे करें। आप ये क्या सोचिएगा कि सरकार जहाँ पर मेरा रहेगा वहीं पे मैं करूँगा। अरे भाई सरकार होने से कुछ नहीं होता है, हमने देश के लिए करना है, देश के लिए करना है कुछ भी। और हर एक सरकार का ये जो है प्राथमिकता होना चाहिए कि शिक्षा हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इन पे जो है बहुत बड़ा करारा चोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे देश में निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो जाए। और ये तब होगा जब आम जनता भी जागेगी। आम जनता जब तक अपनी लालच की पिटारा नहीं छोड़ेगी, लालच की पिटारा में नहीं पड़ेगी, तब तक जो है ये काफ़ी विकसित नहीं हो सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाने बहुत ज़रूरी है, जिसे सहभागी विकास भी कह सकते हैं। यद्यपि महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को उनके पुरुष साथियों, अधिकांश उनके पतियों ने गलत प्रयोग किया है। ये भी बात सही है कि आज अगर ग्राम क्षेत्र में देखोगे तो जो है पत्नी जो है अपना इलेक्शन जीतती है और पति का पूरा पूरा दबदबा होता है। तो ये जनरली हर एक गांव में देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि हम पंचायती राज्य पढ़ रहे हैं तो ये तो देखने को आम मिलती है। परंतु निश्चित रूप से इससे महिलाओं की कुछ हद तक जो है सशक्त किया भी है। वो अपने अधिकार और दायित्व के प्रति अधिक जागरूक होती जा रही है और कुछ मामले में तो अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। निश्चित ये बहुत ही सकारात्मक विकास का एक नमूना हो सकता है। नवीनतम जो है संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासित निकायों को जो है वित्तीय संसाधनों को व्यापक किया गया है। फिर भी उन्हें पैसे की कमी है, उन्हें कर लगाने की शक्ति दी गई है पर वे पर्याप्त कर एकत्र नहीं कर पाते हैं। अंततः संसाधनों की कमी के कारण पंचायती स्वशासित संस्थाओं के रूप में अपनी भूमिका निभाने अथवा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास करने में सफल नहीं हुई है। पंचायतों पर राज्य सरकार के अनेक नियंत्रण हैं और राज्य सरकार को उनके प्रस्ताव रद्द करने और भंग करने का एक अधिकार भी है। परंतु 73वें संशोधन में राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वह पंचायत राज्य संस्थाओं के भंग होने के 6 मास के अंदर उनको चुनाव करवाया जाए। यह आवश्यक है कि लोग लोकतांत्रिक ढंग से जो है निर्वाचित पंचायत में सक्रिय भागीदारी करें। इसे ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। ग्राम सभाओं के माध्यम से लोग जो है पंचायत से प्रश्न कर सकते हैं और स्पष्टीकरण की मांग भी कर सकते हैं। ग्राम सभा लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं में तालमेल भी कर सकती है और ग्राम विकास की दिशा में नियोजित भी कर सकती है। ग्राम सभाएं तृणमूल जो है स्तर पर लोकतंत्र संरक्षण करने की भूमिका सफलतापूर्वक निभा सकती है। यदि उन्हें पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मजबूत पंचायतों पर निर्भर भी हो सकती है। निम्नतम जो स्तर पर लोकतंत्र की बुनियादी रूप में पंचायतों को उनसे विश्वास जताकर उन्हें जो है पर्याप्त प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियां देकर लोगों की जो है सक्रिय सतर्कता और भागीदारी को प्रोत्साहित करके सशक्त किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो कि ख़त्म हो जाता है और साथ में चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो देखना मत भूलना।